Let's try to understand whether it is possible that we get stationary longitudinal wave, or in other words, longitudinal stationary wave. Sir, what is so special about it? Why are you writing differently? There is a reason. Okay. Because if we are talking about normal stationary wave, it is very easy for us to visualize. I'll tell you how. So the normal stationary wave कैसा दिखता है? ऐसा वाला. And even with the help of guitar string or rope, you could easily visualize it. So visualization of normal stationary wave is possible. But what happens when you actually have to visualize longitudinal waves? Just to be clear and to see we are on the same track, I'm asking you one simple question. Divya, Divya, can you tell me what does longitudinal wave mean? Or can you give me any example of longitudinal wave? Sir, sound wave. Yes. शर्वरी का क्या इशू हो रहा है? शर्वरी इज अनेबल टू ज्वाइन. अच्छा, हो गई ना ज्वाइन, और क्या करूं? चलो. So sound wave is a good example of longitudinal wave. So to understand this particular longitudinal stationary wave, you need to understand that we will be talking about two longitudinal wave. Okay. So let's say first longitudinal wave, I'm representing it like this. So you can see that this region is compression, this region is rarefaction. Then again, there is rarefaction and compression and so on. So this particular wave is actually moving to the right, and there is another wave, same wave, identical wave. For stationary wave to occur, the wave must be identical. So there is another identical wave which is coming in the opposite direction. So what would happen? You will get stationary wave. But it is very difficult for us to visualize this stationary wave. या फिर ऐसे crest and trough में भी ना click नहीं होता वो कि stationary wave कैसा दिखेगा. And that is why what we do, we represent crest with the help of crest and rarefaction with the help of trough. तो हम लोग ना इसको अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. हालांकि longitudinal wave doesn't look like this, or it doesn't like है ही नहीं, but to understand it properly we represent it like this. हम लोग ऐसा ऐसा लाइक इमेजिन करते हैं कि ये वेव ऐसा दिखता है. लाइक कंप्रेशन को क्रेस्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड जो ये होता है ना थ्रस्ट, उसको रेयरफ्रैक्शन से. ओके, ट्रफ को, सॉरी. तो जस्ट ये अंडरस्टैंड करो. क्या डाउट है? EM waves, all EM waves are longitudinal wave, Arpit. नहीं sorry, all EM waves are transverse waves. कोई longitudinal wave नहीं है EM waves में. तो electromagnetic waves, all of them are transverse. They don't require medium for propagation. किधर भी भेज दो, कैसे भी चले जाएंगे. ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू गाइस. तो अभी एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि basically we have a pipe. We are going to study two pipe. There are two pipes in your syllabus, and उनका लॉजिक बहुत सिंपल है. So we basically have two pipes over here. उसमें से पहला पाइप जो है, this particular pipe is closed at one end. So this pipe is closed at one end, and on this particular pipe what you are going to do, you are going to use one tuning fork. Now when you use this tuning fork over this particular pipe, and when you basically sound it, it's like tang करके sound करते हैं. So what is going to happen? This particular tuning fork will be sending waves in the downward direction. बराबर ना? तो देखो उसका wave compression and rarefaction format में होगा, but मैं कैसे imagine कर रहा हूँ? I'm imagining it like this. So don't get confused. Actual wave doesn't look like this. It is just a simple interpretation of what we actually have, what we actually see. Okay. तो like ऐसे आया, नीचे इधर strike होगा, and once it strikes, what will happen? It will be reflected. Am I correct? So this wave will be reflected, and once it gets reflected, it will bounce back, and then again it will go up like this. But you guys understand one simple thing, correct? That this tuning fork has frequency of, let's say, assume 120 hertz. So that means it's not going to stop after it sends one wave. It is continuously vibrating. What it means, जो पहला वेव रिफ्लेक्ट होके रिटर्न आ रहा है, उसको सेकेंड वेव आते आते मिलेगा.
जो सेकेंड वेव ट्यूनिंग फॉर्क ने क्रिएट किया है वो पहले वेव को रिफ्लेक्ट करके मिलेगी. सो व्हाट इज गोना हैपन? Two identical wave, opposite direction. What will they produce? Two identical waves, opposite direction. What will they produce? Stationary wave. Stationary wave. And this is why you get stationary wave inside the pipe. Is it clear? पाइप के अंदर स्टेशनरी वेव क्यों मिलता है वो समझा? एक वेव जो ऑलरेडी गया था ना वो रिफ्लेक्ट होके रिटर्न आ रहा है. ऑन द अदर एंड सेकेंड वेव ऊपर से नीचे आ रहा है. सो दे मर्ज विथ ईच अदर. नाउ इट इज ट्रू कि सर थोड़ी ना फिर वो दो ही वेव्स होंगे. सो देयर आर मल्टीपल वेव्स दैट आर कमिंग. या सो द स्टेशनरी वेव दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड इज नॉट एज सिंपल एज वी आर गोइंग टू कंसिडर. Actually, the stationary wave that is produced in the pipe is very complex because multiple waves are present na at a single time. तो like थोड़ा सा complex होता है. but हमें कैसे है? In our syllabus it is in easy format. So we will be focusing on easy format more and then we will think about कि अगर हमें difficult पढ़ना है तो हम लोग difficult पढ़ लेते हैं. but वो further studies के लिए. Once you join engineering, once you are pursuing sound engineering का career, then आपको बहुत depth में पढ़ना पड़ता है इससे. अभी के लिए बस इतना ही है याद. तो यहाँ से हमें सिर्फ यही सीखना है कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव. तो दैट इज longitudinal stationary waves are possible. Second, how they are produced. So you basically sound a tuning fork near pipe close at one end or pipe open at both ends. So in that particular case what happens कि you get stationary wave. Okay, तो ये stationary wave हमें मिल जाता है because two waves interfere with each other. In fact, two identical waves interfere with each other. Now let's try to solve or let's try to understand formulas and analogy behind this particular stationary waves. इसमें किसी को डाउट नहीं है ना प्रोडक्शन में कि how exactly stationary waves are produced? No, sir. Okay, ठीक है. Motion in plane. Waves net. Yeah. Let's talk about stationary wave in pipe close at one end. So what we are going to do, first of all, we are going to create a pipe. And you are already familiar about fundamental mode. While remembering the first, remembering these modes, the pipe close at one end, you need to understand that wherever you get free, wherever you get freedom, at the freedom wala point, you will get antinode. But as there is no freedom over here for molecules to vibrate, there will be formation of node. This is your first fundamental mode. ये आपका सबसे पहला सबसे basic fundamental mode है. या फिर you could say first mode or fundamental mode. So what happens in this case? Since there is node, so what is gonna happen? तो node में कैसा होगा? So you will get it like this. Wave that will be produced ना will be like this. Antinode के यहाँ पे बड़ा amplitude होता है and node के यहाँ पे somewhat like this. Okay. Now the distance between node and antinode. What will be that distance, guys? अगर आप देखोगे ये length of the pipe लेते हैं L. What this distance will be? It will be equals to node and antinode के बीच का distance. And what is it? What is the distance between one? Lambda by 4. Yes, it is lambda by 4. So L will be lambda by 4. From over here, you could say that lambda is 4L. Rest is very easy. What will be the velocity? It will be n lambda. So your fundamental frequency will be V by lambda. Therefore, your fundamental frequency or zeroth overtone will be V by 4L. This is the formula that you will be remembering. Remember, you cannot write V as under root of T by mu because that was the formula of wave velocity present on rope. यहाँ पे कोई rope involved नहीं है. इधर नहीं तो आके ये formula चिपका दोगे. Concept को समझो. यहाँ पे sound का speed होना चाहिए. तो for sound का speed you could either use the formula under root of gamma RT upon m naught or you could use the formula under root of gamma p by rho. Okay, so you can use any formula out of these two. But you cannot write V equals to under root of जो था ना पहला वाला वो वाला formula. Okay, that is specifically for
wave that is produced on rope. तो ये आपको फंडामेंटल मोड मिला. ओके, अभी देखते हैं किसको बेसिक याद आ रहा है. कुणाल, डू टेल मी, इसमें कौन सा ओवरटोन है एंड कौन सा हार्मोनिक है? विच ओवरटोन, विच हार्मोनिक? Kunal, are you there? Are you there in lecture? जो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे मैं उनको रिमूव कर दूंगा, देखना फिर. सिद्धांत, टेल मी. Yes, sir. कौन सा हार्मोनिक, कौन सा ओवरटोन? Right वाला. अरे हे भगवान, हाँ बोल बोल. कौन सा हार्मोनिक, कौन सा ओवरटोन? राइट वाला थोड़ी आंसर है. Sir, 0 overtone है. जीरो Zero. ओवरटोन है, बराबर, वेरी गुड. और हार्मोनिक? Fourth वाला. First. नो, फर्स्ट. वेरी गुड डियर. तो इट इज जीरोथ ओवरटोन. फंडामेंटल मोड को जीरोथ ओवरटोन बोलते हैं. एंड सेकंड थिंग, देखो इसमें एन नॉट के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट इज फर्स्ट हार्मोनिक. दिस इज हाउ यू शुड बी अवेयर ऑफ द बेसिक. तो ये हो गया आपका फंडामेंटल. अभी आपको फर्स्ट मोड अगर पढ़ना है, इसके बाद सॉरी सेकंड मोड अगर पढ़ना है, तो मैं आपको एक सॉन्ग सिखाऊंगा. वैसे भी सॉन्ग बहुत फेमस है, यू ऑलरेडी हैव हर्ड अबाउट इट. वो सॉन्ग है ना सुशांत सिंह राजपूत का, नाना नाना, वो वाला. वो मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, वो ना 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 ना. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, पहला पहला मोड में आपने सिर्फ ना किया, एन ए ना. सेकंड मोड में क्या करोगे, ना ना. ओके, तो इट्स क्वाइट इजी देन टू रिमेम्बर. ऐसे लाइक करते हैं, ऐसे करते हैं. गाइस फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, स्पीड प्रॉपर है मेरी? हाँ सर. हाँ, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को चाहिए कि मैं स्लो पढ़ाऊँ, तो आप मुझे बता सकते हो बिंदास. अनम्यूट करके बोलना जस्ट. वो मैं आपके साथ थोड़ा फास्ट में क्यों जाता हूँ, क्योंकि लाइक आप जेई वाले स्टूडेंट हो ना, तो आपको आता है, मतलब लाइक अंडरस्टैंड होता है प्रॉपरली. बट फिर भी अगर फास्ट हो रहा है तो यू शुड डेफिनेटली टेल मी. ओके, देखो ये हो गया ना, ये हो गया ए बीच में आएगा, ये हो गया ना, ये हो गया ए. ओके, वन थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट, एक तीन चीज ध्यान से सुनो कि पाइप का लेंथ हम लोग चेंज नहीं कर रहे. इट इज द वेव दैट इज गेटिंग एडजस्टेड टू अवर पाइप. पाइप का लेंथ एग्जैक्टली सेम है, डिट्टो है, जस्ट हमारा वेव खुद को एडजस्ट करता है. सो इनिशियली इफ योर वेवलेंथ इज लैम्बडा, now it will be changed to some another value that is lambda 1. So now if you try to draw this particular diagram, this one is our what mode, this one is our second mode. I wish there was some kind of feature over here, like मतलब iPad में आया है वो feature, but notes में नहीं है ये, कि अगर आप ऐसे कट करोगे ना तो अपने आप डिलीट हो जाएगा. That would have been so wonderful. सुनो, तो what is going to happen, node में there will be closure like this, and then anti-node, and then over here, अरे रे रे रे, the diagram is getting worse and worse. हाँ, ऐसा something. Then यहाँ पे you would get ऐसा something, and done. We are done with this. Okay, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे we will try to calculate entire length of the pipe. So let's say this is our length L. You can clearly see this is distance between antinode and node. So I would be calling it as lambda by 4. No, not lambda by 4, lambda 1 by 4. As I said, wavelength is going to be changing itself so that it could adjust to that length. And one node के बीच का distance lambda 1 by 2. Now if we add these together, what will be the value that you get? मेरा थोड़ा मैथ्स वीक है तो करो ऐड. कितना आएगा? 3 lambda by 4. So this will be 3 lambda by 4. So definitely we could write that overall length of the pipe is 3 lambda by 4. So lambda 1 will be 4 उधर जाएगा. We will get 4L by 3. Okay? Lambda 1 will be equals to 4L by 3. Now what is going to happen? We are going to use the simple formula of velocity. Okay? Velocity will remain same. अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना एक confusion होता है
So I'm going to clear that confusion. Sir, velocity same कैसे रहेगा? The reason is that your wavelength is changing and your frequency is changing. So one thing must remain constant so that proper changing could occur. Okay, अभी देखो सर, आपने बोला तो frequency same रहता है. I said कि जब medium change होगा, so whenever there is change in medium, then your frequency remains constant. So in that case, आपका velocity changes and wavelength changes. तो वेवलेंथ एंड वेलोसिटी एडजस्ट देमसेल्व्स क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है. बट व्हेन देयर इज नो चेंज इन मीडियम, अभी देखो पाइप में पहले भी वो पाइप के अंदर ही फ्लो हो रहा था, एयर के अंदर ही फ्लो हो रहा था, अभी भी एयर के अंदर ही फ्लो हो रहा है. सो देयर इज नो चेंज इन मीडियम. इन दैट केस फ्रीक्वेंसी चेंजेस बट स्पीड रिमेन्स सेम. सो v कांस्टेंट रहता है. ये चीज अगर आपने नोट डाउन नहीं की है तो आई वुड एडवाइस यू कि आप इसको नोट डाउन करो, आप इसको याद रखो. ओके गाइस, अच्छे से याद रखना है. नेक्स्ट, so you got the formula v equals to n1 lambda 1. Now what you are going to do, basically you are going to put the value of you are going to find out value of n1 which is v upon lambda 1. Okay, so let's put lambda 1 ka value. Lambda 1 is 4l by 3. This 3 can be taken to the top, so we will get 3v by 4l. But I think you have already seen v by 4l before, right? v by 4l before. What is that? Fundamental. So we will get 3 and not. Now you tell me, Kinnari, which mode, which harmonic, which overtone? Bol. Second harmonic. Second harmonic. Okay. Can you see 2 over here? इसलिए maybe तू बोल रही है second harmonic है ना? मेरे ख्याल से तो यहाँ पे 3 है, तो which harmonic will it be? Third harmonic. Yes, multiple देखना है. And what about overtone? Second overtone. Nah dear, you are understanding it in a wrong way. ओवरटोन 0 के बाद 1 ही आएगा. देखिए n0 ये जो नंबर होता है ना, that indicates overtone. n0 मतलब zeroth overtone, n1 मतलब first overtone, and this multiplier indicate harmonic. So this is third harmonic and first overtone. Now are your doubts cleared? Yes, sir. और नेक्स्ट तेरे को ही पूछूंगा, नेक्स्ट वाला आना चाहिए आपको. ओके, तो as you can see over here, after the value of first harmonic you directly get jump to third harmonic, second harmonic का झोल. This is what happens in some cases. आपको all harmonics नहीं मिलेंगे, that is you won't get all of the harmonic, like 1 2 3 लाइन से नहीं मिलते, कुछ harmonics skip हो जाते हैं जैसे इसमें हुआ. Okay, there are multiple reasons, मतलब there is like a huge study behind it और हमारे पास answers है ऐसा क्यों होता है, but not in your syllabus. So moving on to the next topic. Second mode हो गया. Now we are going to move to third mode, and this is where I want you to solve it in the rough. Rough में solve करो, फटाफट करो. Rough में I just want you to solve in rough. और आपको याद है ना वो नाना 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 ना ना, तो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी 2 ना यूज कर लिए है, अभी तीसरा ना एक्स्ट्रा ऐड करो उसमें.
Anybody wants to refer previous pages? No, chalo. Na 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 na. Okay, did you get the answer? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Anybody wants more time? Okay. Tejas, which overtone did you get and which harmonic did you get? Mr. Tejas, which overtone did you get? Which harmonic did you get? यार आधे लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते यार? मेरे को फिर डाउट आता है कि लेक्चर में है कि नहीं. तो मैं रिमूव करूंगा तो फिर आपका ही नुकसान होगा. सिद्धांत, आर यू देयर इन लेक्चर? हेलो। हाँ, आप बोल तेजस, आर यू देयर इन लेक्चर? तो रिस्पॉन्ड कौन करेगा? किसका वेट कर रहा है? थर्ड मोड में कौन सा हार्मोनिक आएगा, कौन सा ओवरटोन आएगा? दुर्वा, which harmonic, which overtone, dear? दुर्वा सोलंकी. I don't think this topic is difficult, but I do think that many of you are not solving seriously. If this is the case, then I would make it compulsory for you all to turn on the camera. कि अगर आपको लेट के लेक्चर देखना है, टाइम पास करना है, तो लेक्चर अटेंड ना ही करो, वो बेटर है. अटेंड द लेक्चर विद ऑल योर सीरियसनेस. संस्कृति, what is the answer? The fifth harmonic and third Yes. overtone. Okay, very good. So fifth harmonic. Now it is quite evident by now that all you are getting is odd harmonics. Like first के बाद directly third आया, third के बाद directly fifth आएगा, fifth के बाद directly seven and so on. Okay, so this is how this particular mode look like. तो मैंने क्या किया, ना 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 लिया, then lambda 2 by 2 लिया because you have already used lambda 1, so lambda 2 by 2. So if you add them together, you get 5 lambda 2 by 4. Okay, ये यहाँ पे ना एक शॉर्टकट मार सकते हो आप. ये जो 5 मिलता है ना, दैट इज योर हिंट. तो 5 आया तो फिफ्थ हार्मोनिक होगा, जो यहाँ पे 3 आया तो थर्ड हार्मोनिक हुआ, यहाँ पे 1 आया तो फर्स्ट हार्मोनिक हुआ. ये आप शॉर्टकट याद रख सकते हो. ओके, लाइक थर्ड फिफ्थ, अगर आपको लेंथ वाइज जाना है तो, बट ठीक है, यू विल कंटिन्यू. तो आफ्टर दैट लैम्बडा ये मिला, इधर से लैम्बडा 2 निकाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देन यू नो v इज इक्वल टू n लैम्बडा. यूजिंग दैट फॉर्मूला वी गॉट n2 का वैल्यू, we got it like this, n to 5n. तूने थर्ड ओवरटोन बोला, सेकंड था ना संस्कृति? हाँ सर, सेकंड. गलती कर दिया उसने, ठीक है, नो प्रॉब्लम. अच्छा, what are the conclusion that you have drawn over here? You have drawn some conclusion that only odd harmonics are present. Only odd harmonics are present, like 1 के बाद 3, 3 के बाद 5. Now general formula can be written like this: np equals to 2p plus 1 times n. You are very much familiar with the idea of general formula, right? So you put the value of p, you get the value of n. Like for example, let's check second के लिए. The general formula is np equals to 2p plus 1 times n naught. या फिर फंडामेंटल, मैंने यहाँ पे ये नोट्स में फंडामेंटल को मैंने n naught नहीं लिखा है,
but it's better if you denote it by n naught, so याद रहता है. अभी for second overtone you are going to put p के जगह 2, so n2, 2 into 2 plus 1 n2 n naught, so 2 2 is 4, 4 plus 1 5 n naught. Okay, तो ये हो गया n2. Done. Now the next, हाँ बोल. ओवरटोन 2 मींस एंड हम थर्ड नोड निकाल देते हैं ना. सर आप वापस रिपीट कर सकते हैं? कौन सा वाला, ये पूरा सॉल्व किया वो, ये सॉल्विंग? हाँ सर. Okay, let's do it. Third mode in depth. But before we go deep into it, first I want you to understand that we are already done with fundamental mode, then second mode, then third mode, and this one will be my fourth mode. अच्छा, ये सेकेंड मोड ही था ना मेरा? हाँ, ये सेकेंड मोड था. सेकेंड मोड में फर्स्ट ओवरटोन मिलता है, तो थर्ड मोड में सेकेंड ओवरटोन मिलेगा. अरे वो तो सीक्वेंस वाइज जा रहा हूँ मैं. ओके सर. ओके, तो थर्ड मोड है. नाउ इसमें क्या मिलेगा अपने को? ना 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 मिलेगा. सो दैट वुड बी n, then a, then n, then a, then n, then a. Okay, now if you try to draw wave now, this is how it will look like. And obviously dotted one. Okay, so this total length is L. The distance between two nodes is lambda 2 by 2. Again, two nodes के बीच का distance is lambda 2 by 2, and one antinode, one node के बीच का distance, it's simply lambda 2 by 4. So you add all this together and you get the answer like L equals to 5 lambda by 4. So from over here you can find out lambda 2 easily as 4L by 5. 5 आ रहा है? Yes, correct, no problem. Now we know that V is equals to N2 lambda 2. So your N2 का value will be V by lambda 2. Now you can put lambda 2 का value as 4L upon 5. 5 ऊपर. So N2 will be 5V upon 4L. So V by 4L will be your fundamental frequency, that would be N0. And this is your final answer. Now, as it can be seen, multiplier is 5. So it will be fifth harmonic. And N2 is second overtone. Now is it clear? जिसको doubt था समझा? Yes sir. Okay, संस्कृति तेरा doubt clear हुआ? Yes, sir. Okay, और किसी को doubt है कुछ इसमें? No, sir. Okay, चलो. Now this is the one that you are going to solve on your own as homework. Okay, and you also have write down conclusion. Now what is the difference? This is pipe close at one end and this is pipe open at both ends. Pipe open at both ends मतलब दोनों तरफ open होता है. Now some of you might wonder, sir, how is reflection possible then? It is possible because ना पहले pipe confined region में था. Okay, so basically you are restricting the free motion of the particles over here. Then what happens at the end? उसको freedom मिल जाता है. So because of that freedom, जब pipe open at both end होता है, तो this is what happens. ये थोड़ा सा डेप्थ में जाके कर रहे हैं. इस लॉजिक को अगर आप याद भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा. So you can ignore this logic if you want to. So what happens? क्योंकि मैंने क्या सिखाया था कि जब पाइप क्लोज एंड होता है तो वेव रिफ्लेक्ट होके रिटर्न आता है, बराबर ना, एंड ऊपर वाला वेव नीचे आता है एंड ये दोनों इंटरफेयर करते हैं. बट सर ऐसा नहीं होगा क्या? सर पाइप ओपन एट बोथ एंड है तो एक जगह वेव क्रिएट होगा, दूसरी जगह से बाहर, तो वेव रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा ना. बट डियर, यू आर फॉरगेटिंग अ सिंपल थिंग कि जब वेव डेंसर टू रेयरर जाता है तभी भी वो रिफ्लेक्ट होता ही है, बट वो कम क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट होता है. सर डेंसर क्यों बोला?
बिकॉज यहाँ पे बेसिकली आपने पाइप के पार्टिकल्स को कन्फाइंड कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो यहाँ पे एयर लिटिल बिट, ये लिटिल बिट भी बहुत काम की चीज है, डेंस होता है, यहाँ पे रेयर होता है. ओके, सो इवन व्हेन योर वेव इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, yes, I agree that some part of it will go in forward direction, but some part of it will definitely replace or reflected. तो कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, और कुछ पार्ट ऊपर से आ रहा है, तो वो मर्ज हो जाते हैं. तो even the pipe is open at both end, we still get the result, required result. Okay, now over here the thing that you need to remember, or the girl that you need to remember, is Anna. How? See, open end A form होगा, open end A form होगा, बीच में N form होगा. Okay, so the wave that is created will look like this. You might have seen in the movie or game Prince of Persia. This is hourglass. या फिर किसी और जगह पे देखा होगा, तो हमें hourglass मिलता है in case of this particular wave. तो बाकी का लॉजिक फंडा सेम है. I'll try to solve first mode for you, basic fundamental mode. The distance between two antinodes, my dears, is nothing but what? Lambda by 2. So your L is equals to lambda by 2. So from this particular thing, you can use the formula V equals to N lambda. Okay, तो N will be equals to V by lambda. इसको N नॉट बोल देते हैं. V के जगह you could write V only. Lambda के जगह you could write 2L ना, 2L. This is fundamental mode. Try to understand the difference. Whenever you have pipe close at one end, your fundamental frequency will be V by 4N. But if the pipe is open at both end, your fundamental frequency V by 2N. फॉर्मूला अभी के अभी रट्टा कर दो, बाद में काम आने वाला है, आज सम सॉल्व करने वाले हैं तब. फंडामेंटल मोड फॉर क्लोज पाइप के लिए V by 4L, ओपन पाइप के लिए V by 2L. ओके, आप इसका एक काम करो ना, एक मोड यहीं पे कैलकुलेट करो रफ में जरा, सेकेंड वाला. तो सेकेंड वाले मोड में क्या होगा? एना एना होगी, मतलब एन एना एक्चुअली, एन एना. ओके, या फिर एना ना, ऐसे भी याद रख सकते, वॉट एवर यू गो, एन एना या फिर एना ना. गलती से ऐसे मत लिख लेना एना एना. एना एना, एंटीनोड के बाजू में आपका ए आ जाएगा. दिस इज रॉन्ग. एक मोड सॉल्व करो, मेरे को कौन सा ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक है वो बताओ. किसी मतलब रिवील मत करो, आई विल आस्क समवन. मुझे भी तो पता चले कितने लोग सीरियसली सॉल्व कर रहे हैं. डन. Yes. एनीबॉडी वांट्स मोर टाइम? ठीक है. सो विल टेल मी. राशि, टेल मी. राशि पवार, राशि,
Rashi, are you there in lecture? Okay, Rashi, I'm going to remove you if you don't respond to me. Are you there in lecture, Rashi? Rashi, are you there in lecture? अभी मेरे को ना एक्सक्यूजेस क्या आएंगे पता है सामने से, सर मेरे को कॉल आया था, मेरा नेटवर्क इशू था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Hello, Are you there in lecture? sir, can you hear me? Yes, now I can hear you. बोल कौन सा ओवरटोन है, कौन सा हार्मोनिक है सेकंड में? ठीक है. सिद्धेश माने which overtone, which harmonic? So zeroth overtone and second harmonic. जीरो कैसे डियर, जीरो तो पहले ही किया ना मैंने. Second, जीरो first इधर ही. overtone दो. हाँ, so it will be first overtone and second harmonic. इसके आगे सॉल्व करोगे आपको थर्ड हार्मोनिक आएगा, उसके आगे करोगे फोर्थ हार्मोनिक. यू विल सून रियलाइज दैट कि यू गेट ऑल द हार्मोनिक्स प्रेजेंट ओवर हियर, मतलब सबके सब हार्मोनिक्स मिलते हैं. तो ओपन पाइप का ये कंक्लूजन मैंने हालांकि लिखा है, बट आई वांट यू टू राइट डाउन योर ओन कंक्लूजन based on this particular topic. So this will be the first homework for you guys. Okay. Yeah. Second one. Chalo, let's continue. Now this is where I have provided some extra hint for you guys. Like it's like ना, ये entrance के लिए काम में आने वाली चीज है. Whenever we have pipe open at both ends or string between two rigid supports like this, ऐसे. So in both of these cases, our n का value becomes v by 2l. n का value क्या बनता है? v by 2l. So you can remember it like that. इन दोनों में से कोई भी केस होगा, you will try for this formula, n equals to v by 2l. But if the pipe is closed at one end or string is attached at one end and other end is free, ऐसे, ये ऐसे वाला रूप आपको जिम में दिखेगा. तो जिम में जो वेव प्रोड्यूस होता है ना, स्टेशनरी वेव, that is actually behaving with this fundamental frequency. समझ रहे हो? तो ये v by 4l है. इसको थोड़ा सा माइंड में फिक्स कर दो properly. We'll solve some sums based on this topic now. अच्छा, मैंने आपको पूरा पीडीएफ सेंड किया था क्या स्टेशनरी वेव का, कि 89 तक ही भेजा था? पूरा भेजा. पूरा भेजा है ना? 19 उसके आगे pages पर. पूरा भेजा. बस. तो इसीलिए देवांश के 19 पेजेस भरे क्या? हाँ सर. झोलर. ठीक है. First we will try to solve one very simple question. This will give us a rough idea of how exactly like question घूम के आ सकते हैं. Rough idea. I am not solving JEE level का question. I know हम लोग पहले easy पढ़ रहे हैं, तो उसे धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे टॉपिक को. Find the distance between two successive nodes. दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस, which is in nothing but lambda by 2. Okay. In a stationary wave. अरे ये इसका नहीं है, ये नहीं पढ़ना है, पाइप का नहीं है ये. वैसे भी आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस किए, उड़ा दो इसको. मेरे को लगा पाइप का है. हाँ, दिस इज द वन दैट वी शुड बी सॉल्विंग. देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एंड करेक्शन. यस, एंड करेक्शन है. वाओ, दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. एंड करेक्शन, आई लव दैट टॉपिक. दिस वन, an air column is of length 17 centimeter long. Calculate
the frequency of fifth overtone if the air column is closed at one end and open at both ends. So they have given us two scenarios and they are asking us to find out which frequency, fifth overtone का frequency. So I will be solving this one. तो मैं ये solve करूंगा, close at one end वाला मैं solve करूंगा, open at both end वाला आप घर जाके solve करना. Okay? देखो, क्योंकि मैंने open का आपको condition ही नहीं सिखाया, मेरे को आता ही नहीं है, आप खुद formula derive करो और खुद लिखो. तो close at one end में we saw a general formula, right? So that general formula was like this: NP equals to 2P plus 1 times N0. Since we are talking about fifth overtone, value of P will be 5. So therefore, it is going to become N5 equals to 2 into 5 P ke jagah plus 1 times N0. So 2 tens are 10, 10 plus 1, 11, you get value as 11 N0. See, this is where general formula is very much helpful. Because otherwise, you would need to draw that na wala diagram. Then you would have to create that wave. You would have to solve it to get this particular answer. Kaun karega itna mehnat? So N5 is 11 times N0. Now they are asking us for this N5, correct? This is what their main question is. So they are asking us ki N5 kitna hoga. So since we are first talking about pipe open, pipe close at one end, okay? So first they are talking about pipe close at one end. Therefore, we will be directly using the formula of N0 equals to V by 4L, basic formula, okay? N0 equals to V by 4L. So V ka value, they have already provided, it is 340 meter per second, 4 to number hai, and length ka value is 17 centimeter. So you could write it as 17 into 10 raised to minus 2. So it is quite evident कि क्या होने वाला है, 17 2s are 20, 20 और ये 20 by 4, 5. So you would get 500 as your basic fundamental frequency. And if you want to find out N5, then you just need to put that N0 over here. So 11 times 500 will give you 55,000 as your, नहीं, हाँ बराबर है, नहीं, 5,500 as your basic fundamental frequency. Easy था सम, समझा ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ऐसे टाइप के इजी सम्स होते हैं, अपने को टेंशन नहीं लेना है ज्यादा. Let's move on to next theory topic, which is actually quite like you could say practical based topic. Practical based क्यों? I'll tell you the reason why. We think that antinode is produced at open end, and it is not wrong to think like that. Because जहाँ पे उसको freedom मिलेगा, वहाँ पे वो antinode show करेगा. That is, the particles will vibrate with maximum amplitude. वही point होता है antinode. तो उसको ज्यादा freedom जहाँ मिलता है, वहाँ पे वो produce होता है. But in real life, antinode is not present over here. That is, it is not present at the theoretical location we thought. तो A के जगह पे वो नहीं मिलता, वो slightly above मिलता है. That is A dash, जहाँ पे उसको और ज्यादा फ्रीडम मिलता है. तो क्यों सर, नीचे क्यों नहीं फ्रीडम मिला? आप अगर देखोगे तो बाउंड्री में पाइप तो है ना, आजू बाजू में बाउंड्री में देयर इज पाइप प्रेजेंट, सो इट डजंट गेट दैट मच फ्रीडम जितना उसको बाहर मिलेगा. टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल. ओके, आपके पेरेंट्स ने बोला कि जाओ बाहर खेल के आओ, बट एट द सेम टाइम उन्होंने आपको डोर के बाउंड्री के पास रह के खेलने को बोला. You won't be enjoy that much in front of your parents, no matter what you say, no matter how introvert you are. अगर आप बाहर जाओगे तो आप कुछ भी कर पाओगे, करेक्ट? सो जब आप वो बाउंड्री क्रॉस करते हो, you get freedom and you enjoy yourself more. Same way, जब पार्टिकल पाइप के एज पे होता है तो वो इतने अच्छे से वाइब्रेट नहीं कर पाता. So rather than getting vibrated over here, it simply prefer a location little bit above. This particular distance is denoted by E and known as end correction. Because हमारे calculation में अगर हमने सिर्फ इतना length लिया पाइप का, then that would give us wrong value. We need to correct this particular reading. Hence, we add some value into it, known as E or end correction. Okay, this end correction, according to Reynolds, was given by formula or is given by the formula 0.3 times D, where D is diameter pi. I want you to understand that
This does not give you exact value. In fact, the value is approximated, but still we get some value. There are other methods to find it through experimentation also out of your syllabus. ये notes डिट्टो एनसीईआरटी के notes के जैसे है, तो एनसीईआरटी में जो भी included है मैंने already आपको सिखा रहा हूँ. So this particular topic is definitely out of syllabus for us. Let's now move on to the next concept. But आपको reason समझा क्या कि वो बाहर क्यों रहता है पॉइंट पार्टिकल? बिकॉज उसको वाइब्रेट करने में ज्यादा फ्रीडम मिलता है. सो पार्टिकल्स और एंटीनोड इज फॉर्म्ड अ लिटिल बिट अबव. थोड़ा फॉर्मूला में एडजस्ट करते हैं इसको. देखो, लेट अस कंसीडर स्मॉल l is length of the pipe and E is the end correction. Then total length of the pipe, or let's say air column का length, this is capital L है ना, उसको length of sound column और length of air column बोलते हैं. So you could use whichever thing you want. Either you can call it as length of air column or you could call it as length of sound column. And small l is what we call as length of the pipe. Okay, small l क्या है? Length of the pipe. And capital L क्या है? Length of air column. सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा, कोई टेंशन नहीं लेना है. ओके, अभी देखो, तो डोंट यू एग्री, जो अपना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था क्लोज पाइप के लिए जो हमने स्टडी किया था V/4L, if we consider end correction then it should be actually L plus E. तो ये याद रखो, if in a question they are talking about end correction, okay, so they want you to actually find out the value considering end correction, then you need to consider this particular E. समझा? अरे yes or no? समझा? हाँ, बस ये अपने को अच्छे से याद रखना है. और ये वाला सेकंड केस है, देखो, ओपन एंड में दो जगह पे ये है, क्या बोलते हैं, ओपन है. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी आर गोइंग टू गेट टू लोकेशंस और टू एंड करेक्शंस. तो दो ई आप ऐड कर सकते हो. सो हिंस द फॉर्मूला बिकम्स L plus 2E. ओके, तो ये था आपका एंड करेक्शन वाला टॉपिक. अभी एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं मैं. अरे वो वाला सम आपके होमवर्क में ऐड करना रह गया. दिस पर्टिकुलर सम गोइंग टू ऐड इट इन योर होमवर्क. मेरे पास जगह ही नहीं बचेगा फिर. सर ये पेज पे ऐसे भेज सकते हैं बाद में. पेज ही भेजने वाला हूँ मैं, होमवर्क ग्रुप में भेजने वाला हूँ. इसमें आई जस्ट वांट यू टू सॉल्व दिस वन, पाइप ओपन एट बोथ एंड वाला, बस उतना सॉल्व करो. एंड द नेक्स्ट वन इज दिस वन. तो ये 3 है, 1 2 3. अच्छा, इसमें ना एक सॉल्व करके बताता हूँ मैं. पाइप क्लोज एट वन एंड वाला, मैंने तो उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, मैं उसको ही सॉल्व करूंगा. तो मैं पाइप क्लोज एट वन एंड के लिए ई का फॉर्मूला डेवलप करने वाला हूँ. आपको भी वही फॉर्मूला डेवलप करना है. नाउ आई नो दैट सर जेई में किधर आएगा एंड ऐसे एंड ऑल, बट आपको कंसेप्ट तो समझेगा उससे बेटर वे में. So for pipe close at one end, we are going to use two modes. Okay. So like N1 का formula क्या होगा? V/4 L1 capital N. या फिर you could also write it like this: L1 plus E. Close end है इसीलिए single E आएगा. Open end है तो इधर पे 2 आएगा. Now N2 के लिए V/4 L2 plus E. Now what we can do is that हम लोग V को एक तरफ लिख सकते हैं and we will get 4N1 L1 plus E
और यहाँ पे क्या मिलेगा v 4n2 L2 plus t. It can be easily seen that v is there. So what we can do, we can equate both sides. So that will be 4n1 L1 plus t equals to 4n2 L2 plus t. Now there will be some cancellations. We can multiply n1 inside. Then we can take e ka term to one side and L ka terms to one side. Then you can take e common and then you can keep e at one side, and this is how you will get your final equation. You can change the terms also. इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो. तो at the same time इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं. Okay, mathematically it is allowed. That's what I'm doing. ये था आपका टॉपिक एंड करेक्शन का. ये पॉइंट बोला मैंने, देखो इधर n1 L1 पहले लिखा तो n2 पहले आया, इधर n2 L2 पहले लिखा तो n1 पहले आया. गाइस ये टॉपिक समझ गया एंड करेक्शन और पूरा पाइप का. तो सम चालू करते हैं. Yes, sir. Okay, ready for sum? I want you to open PDFs now. But before that, अच्छा चलो मजा करते थोड़ा. शामी मेरे को एक बात बता, if the pipe is close, नहीं, if the pipe is open at both end, what will be the fundamental frequency? Sir, did you ask me the question? Nice. तेरा नाम सामी थोड़ी है. I'm asking Sami. I thought you asked. नहीं नहीं, तुझे पूछता हूँ, नेक्स्ट पूछता हूँ. Don't worry. बताओ बताओ, कौन बताएगा? Sami, are you there in lecture? ये मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. पे बात कर रहे हैं. कौन? शामी फोन पे बात कर रहा है? चैट पे मैसेज भेजा था. अच्छा, यस यस. मैंने तुझे पूछा व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड. जब पाइप ओपन एट बोथ एंड होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये सिद्धेश, आई कैन रीसेंड इट. ये टाइप करते करते टाइम निकल जाएगा. अनिकेत, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड? V/2N. Yes, it is V upon 2L. Sumitra, what is fundamental frequency when the pipe is, when the string is attached to one end and the other end is free? String is attached to one end and other end is free. V/4L. Okay, very good. So you got the overall idea. अपने पास basic formulas भी है, fundamental formulas भी है. So let's start solving some sums now. Let's rock it. वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड सोनोमीटर भी हो गया था. अभी थोड़ा पाइप का सम करते हैं. तो पाइप में हम लोगों ने, अच्छा वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में हम लोगों ने सिर्फ 94 तक ही किया था. हायर लेवल क्वेश्चन देखे ही नहीं रे हम लोगों ने. ठीक है, देखते हैं आज देखते हैं. पहले एयर कॉलम के क्वेश्चन करते हैं. Sir, 96 तक क्या था? इसके ऊपर भी करना चाहिए रे, तभी मजा आएगा. हायर लेवल करेंगे ना तो ब्रेन एकदम रेडी हो जाएगा. ओके गाइस, 144 फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो है पीडीएफ का 144. सर पीडीएफ की फर्स्ट वाला, सेकंड जो रिसेंटली सेंड किया था ना लास्ट लेक्चर में, वो वाला. ओके.
सर एंड करेक्शन पे क्वेश्चंस नहीं आते। आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? कंसेप्ट तो सिखाया तो आने तो चाहिए। Okay, so let's solve question number 1. Okay, I'm getting some answers. सुमित्रा देवांश करेक्ट आंसर। मैं तो अभी सॉल्व करने वाला था बट आपने पहले ही कर दिया, अच्छी बात है। क्या क्वेश्चन है? अ ट्यूब क्लोज एट वन एंड प्रोड्यूसेस फंडामेंटल नोड ऑफ फ्रीक्वेंसी 480। तो अगर वही ट्यूब ओपन रखा बोथ एंड में तो व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? अनिकेत करेक्ट आंसर। तो जब वो क्लोज एट वन एंड होता है तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 480 हर्ट्ज। what will happen if it is open at both ends and not dash लेते इसको। See, if the tube is closed at one end, the formula will be V by 4L, correct? V तो वैसे भी चेंज नहीं हो रहा है और लेंथ भी सेम रह रहा है, तो we can say that V by L का वैल्यू will be 4 times N naught. Now N naught dash is V by 2L since it is the formula for pipe open at both ends. और हमने V by L क्या लिखा? 4 N naught, so it will be 4 into N naught. Or don't forget that there is also 2 present. So this will be 1 by 2 into V by L के जगह 4 N naught. So 1 by 2 into 4 into 480. So you can solve it further to get that final answer, which is 960. हो गया solve. Let's solve next question. वन 39. किसी को भी डाउट आ रहा है ना तो पूछने का, शर्माने का नहीं। 139. Two consecutive harmonics of an air column in a pipe closed at one end are of frequency 150 Hz and 250 Hz. What is the fundamental frequency? तो अपने पास एक पाइप दिया है जो क्लोज एट वन एंड है। क्लोज एट वन एंड, ये वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले समझो कि पाइप कौन से टाइप का है, whether it is closed at one end, whether it is open at both end, etc, etc. So when the pipe is closed at one end, the fundamental frequencies are 150 Hz and 250 Hz. बराबर। अपने को क्या निकालना है? अपने को ये फाइंड आउट करना है कि उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। तो अपना फर्स्ट मोड मान के चलो इट इज 150 Hz, ओके, एंड सेकेंड मोड मान के चलो इट इज 350, कितना है, 250 Hz है ना। ओके, कैसे सॉल्व करोगे आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को? एनी आइडिया? Sir, the difference between two consecutive will be 2n. So 2n will be 100. ओके, वेरी गुड। एज वी ऑलरेडी नो, जब पाइप क्लोज एट बोथ एंड होता है, सॉरी क्लोज एट वन एंड होता है, तो अपने को जो n1 मिलता है वो 3 टाइम्स n0 मिलता है, एंड n2 मिलता है वो 5 टाइम्स n0। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये n1 है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो n1 है, एंड दैट इज व्हाई आप डायरेक्टली n1 के जगह वो फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते 3n0 वाला। सो मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ ना। तो अभी जो जब दो कंसेक्यूटिव होते हैं तो उनका डिफरेंस, जैसे इसने बोला डेल्टा n, that will be n2 minus n1, so that is 5n0 minus 3n0 will be 2n0. अभी डेल्टा n अब अपन आराम से निकाल सकते हैं। डेल्टा n will be for us 250 minus 150 which is 2n0. 250 minus 150 will be 100 which is 2n0. So n0 will be 100 by 2, so the answer is 50. We're done. अच्छा सर आपने वो वाला मेथड क्यों नहीं किया? वो पहले क्लिक हुआ क्या? मैंने इसको n एज्यूम किया है, मतलब मेरे को पता नहीं। तो अगर आपको ऐसा n1 में से कंफ्यूजन हो रहा है ना तो मैं इसको np लिखता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ np+1। ये जो भी ओवरटोन होगा np+1 उसका नेक्स्ट ओवरटोन होगा। तो इन सच केस आवर फॉर्मूला विल बी दोनों का सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व,
147. Actually, not I'm going to solve, you are going to solve 147. Okay, I got one answer from Aniket. One answer from Devansh. Both of their answer is correct. Sumitra, is this your recent answer? Yes, sir. Correct. Malar correct. Rudra correct. Waiting for others. ज़्यादा रश नहीं करते, आप सॉल्व करो. जिनका हुआ है they can choose any random question and start solving. वैसे भी ये PDF होमवर्क में है ही ना. ऑप्शन शर्वरी कौन सा ऑप्शन है? Yes, correct. So I got one more correct answer. Sanskriti, why are you not sending me answers? Kinnari, why are you not sending me answers? Heath, why are you not sending answers? Correct. Correct, Chitra. Correct, Sakshi. Okay, I can definitely solve. So I'm going to solve question number 147 for you guys. So 147 में क्या बोला है? For a certain organ pipe, 3 successive resonance frequencies are observed: 400 Hz, 560 Hz, 720 Hz. The fundamental frequency of this particular pipe would be. This is what they are asking. तो हमारे पास अभी टोटल इन टोटल कितने फ्रीक्वेंसीज दिए हैं उन्होंने? हमारे पास उन्होंने 3 फ्रीक्वेंसी दी है. ओके, एंड दे आर आस्किंग अस कि व्हाट विल बी इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो बेसिकली ना हम लोग ना इसमें एक ट्रिक कर सकते हैं. कैन वी यूज दैट वन राइट नाउ? 3 सक्सेसिव ना. आपने सब्ट्रैक्ट करके निकाला क्या? सर लास्ट वाले मेथड से सही था. सब्ट्रैक्ट ना. बट आपने कैसे गेस किया कि पाइप ओपन है कि क्लोज है? सर 169 था तो क्लोज ही होना चाहिए. सर 80 तीनों में 80 कॉमन है. कॉमन है. 5, 80 into 7 and 80 into 9. हाँ, that's what I was also thinking. मेरे दिमाग में पहले मेथड यही आया कि देखो फंडा बाकी के मोड्स क्या होते हैं, N1 क्या होता है, N2 क्या होता है, N3 क्या होता है. दे आर मल्टीप्लायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. जैसे N1 थर्ड होता है क्लोज के लिए, 5 होता है और ये 7 होता है. बट सी दे हैव कॉमन, यू कुड से मल्टीप्लायर. ओके, एन नॉट. तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे तीनों नंबर को कॉमन मल्टीप्लायर ढूंढना है. तो एच सी सेड कि 80 is the common multiplier for all of them. So you can directly write down the answer as 80 hertz. बाकी कोई नंबर कंप्लीट डिवीजन नहीं करेगा तीनों को. Okay, so this was the question. Now I want you to solve next set of questions. थोड़े से लेवल मॉडरेट ही रखते हैं, ज्यादा टफ नहीं रखते हैं. पहले अंडरस्टैंड तो कर लो फिर जाते हैं. अच्छा, बट बिफोर आई गो डीप इनटू दैट,
I want to solve one more question, question number 156. It's quite easy question, but end correction is involved. That is why I'm taking it. Read the question. Okay. क्या बोला है उसमें क्वेश्चन में, if the end correction of an organ pipe is 0.8 centimeter, then the inner radius of the pipe will be what? So E का value is 0.8. Now you remember the formula of E. E का formula क्या होता है अगर आपको याद है तो it is 0.3 according to Reynolds. So you can say 0.3D equals to 0.8 centimeter. है ना, वो जाने दो सेंटीमीटर. D will be 8 by 3 by that logic. And you know what is your radius? It is 2 times diameter is 2 times radius, so 8 by 3. So R will be basically 4 by 3. So 4 by 3 option में ही नहीं. Oh my god, where did I went wrong? Which wrong thing did I just perform? अरे हाँ, पाइप ओपन एंड बोथ एंड बोला है ना, तो पाइप अगर ओपन एट बोथ एंड होता है तो उसमें 2 एंड करेक्शन होते हैं, नॉट जस्ट अ सिंगल एंड करेक्शन. तो मतलब इधर पे भी 2 आएगा. मतलब अगर देखो पाइप ओपन एट वन एंड हुआ तो हम लोग क्या लेते हैं 0.3D, ये क्लोज एंड के लिए, फॉर क्लोज एंड. जब पाइप ओपन एट बोथ एंड होगा तो हम लोग 2E लेते हैं ना, 2 बार एंड करेक्शन होता है. सो दिस इज 2E, सो इट विल बी 2 into 0.3D. सो दैट विल बी 2 into 0.3, दैट इज 0.6D. तो आपको यहाँ पे 0.3, हाँ तो 0.6 लेना पड़ेगा यहाँ पे. शिट. तो 0.6, तो 8 by 6, 8 by 6 means 4 by 3. हाँ तो R will be 2 by 3. Now it's correct. अच्छा, वो एक क्वेश्चन आया, लाइक आप भी ये गलती कर बैठते हैं. ठीक है, रेडी फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व. मैं नो कि यस, मेरे को समझा नहीं. Yes. ओके ठीक है. चूजिंग सिलेक्टिव क्वेश्चंस. एक मिनट, एक क्वेश्चन शायद आई शुड टेक. नहीं, ये बीट्स वाला है यार. बीट्स का कंसेप्ट जब तक नहीं होगा ना तब तक ये मेरे को सताएंगे बीट्स वाले क्वेश्चन. इसके बाद हम लोग ये होने के बाद वही ट्राई करने वाले हैं. वन 151, 153, 163, 169, एंड 175. 175 थोड़ा सा ट्रिकी है, बस बाकी सारे इजी है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 169. अच्छा, ये 169 में बहुत लोगों को डाउट था लगता है. सर ए आ रहा था आंसर. 169 का क्या? हाँ. देख ही देते हैं ना, क्या टेंशन है उसमें, कितना टाइम लगेगा. ये सीट 2008 का क्वेश्चन है. क्या करना है देखो 169 वाले क्वेश्चन में. An open organ pipe has length L and diameter D. If the velocity of sound in air is V, what is the fundamental frequency of the pipe when the end correction is applied? Wow. सर सी And- आएगा ना, आपने फॉर्मूला दिया था. हाँ, V but upon 2L plus E. अरे हाँ 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 हाँ, बट पाइप कौन सा है?
2L थोड़ी होता है उसमें बड़ी, L+2E होता है, तूने फॉर्मूला गलत यूज किया, दैट इज वाई सी। उन्होंने कौन सा आंसर दिया है, सी दिया है क्या? 169 का सी दिया है, ओके। वेट अ सेकेंड, नाउ आई हैव टू थिंक। एक ओपन ऑर्गन पाइप है जिसका लेंथ है L एंड डायमीटर है D। इफ द साउंड velocity of sound in the air is V, what is the fundamental frequency of the pipe when the end correction is applied? तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे एन नॉट का ओपन पाइप के लिए, तो इट इज V/2 L+2E। एंड करेक्शन डबल एक्ट होता है ना, तो आप V/2 लिख सकते हो। L के जगह वी कैन टेक द वैल्यू 2 into E के जगह 0.3 D, so that will be V/2 L, 2 into 0.3 should be 0.6 D. Now you can multiply this 2 inside, so this will be V/2 L plus 0.62 जा 1.2, तो ये 1.2 D आएगा। अभी अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो V will be 2L plus 1.2 D raised to -12। ए ऑप्शन होना चाहिए। हाँ सर। बाकी सर। किसी को, एक मिनट में उनका सॉल्यूशन फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। स्टूपिड पीपल है, कैलकुलेशन कुछ भी किया, कैलकुलेशन रॉन्ग किया उन्होंने। आंसर शुड बी ए 169 का, बट क्वेश्चन इजी था, मेरे को लगा टफ होगा बट इजी। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन ऑन डिमांड, स्पेशल क्वेश्चन नंबर 175। गाइस क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, मिस्टेक समझ रहे हैं ना आपने क्या क्या किया? अरे यस और नो? Yes. हायर लेवल के सॉल्व करने इसके बाद, मतलब उन्होंने हायर लेवल बोला है, मैंने तो देखे ही नहीं है कि कैसे, तो करेंगे इसके बाद वो करेंगे। तो स्ट्रिंग के भी हायर लेवल कर लेते हैं। 175 एंड पाइप ओपन and closed organ pipe, okay, an open and closed organ pipe have the same length. The ratio of pith mode of frequency of vibration of air in two pipe is, ठीक है। pith mode मतलब वो क्या बोल रहे हैं पता है आप? NP ऑफ, पहले कौन सा मेंशन किया है? ओपन। NP ऑफ ओपन अपॉन NP ऑफ क्लोज निकालो। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है ओपन पाइप का, तो आप भी सिखाया था थोड़ी देर पहले, इट इज P+1 टाइम्स N0, और इसका फॉर्मूला है 2P+1 टाइम्स N0। अभी N0 कैंसिल मत करना, क्योंकि ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है। तो यू कैन राइट P+1, ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V/2 L। अभी सर आपने लेंथ डिफरेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि लेंथ सेम है, और ये हो जाएगा 2P+1 V/4L। So now you can cancel common term V/L, V/L. 1/2 1/4 will be equals to 2 हो जाएगा वो। So this will be P+1 into 2 upon 2P+1। तो अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, और सिंप्लीफाई नहीं होगा रे, ऑप्शन में ही नहीं है, क्या गड़बड़ किया मैंने? और कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं क्या? किसी को आया क्या इसका आंसर? अरे यार, आई नो मैंने क्या गड़बड़ किया। मे बी उन्होंने ना जो बेसिक कंडीशन है ना वो डिफरेंट लिया है। मतलब आई टेल सर यू वो P+1 जो लिया है वहां पर P आएगा ना? कैसे पी आएगा। हम लोगों ने पी का वैल्यू 0 से लिया है ना। हम लोगों ने कैसे एज्यूम किया, मैंने जो सिखाया मैं पी का वैल्यू 0 से लेता हूँ। उन्होंने क्या किया है पता है? दे आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ पी लाइक दिस, मतलब वो लोग बोलते हैं कि पी का वैल्यू 1 से ले लो। तो अगर आप पी का वैल्यू 1 से लोगे ना, तो जो पाइप ओपन है उसका कंडीशन चेंज होके क्या हो जाता है पता है? उसका एनपी विल बी सिंपली पी टाइम्स N0, क्योंकि अभी आपको 0 डालना ही नहीं है ना, तो पी के जगह पहले 1 डालोगे। एंड अगर आप ये कंडीशन सेम क्लोज पाइप के लिए ऑब्जर्व करोगे,
तो क्लोज पाइप के लिए एनपी का फॉर्मूला चेंज होके आई गेस वेट अ सेकंड 2p माइनस 1 हो जाएगा. सो दैट इज 2p माइनस 1 टाइम्स n नॉट. तो अभी अभी इसमें क्या हो गया सीन कि उनका भी राइट है और अपना भी राइट है, क्योंकि हमने p के वैल्यूज को 0 1 2 3 लिया है, उन्होंने p के वैल्यूज को 1 2 3 लिया है. तो 1 2 3 के हिसाब से कंडीशन चेंज हो जाते हैं और हमारे कंडीशंस जो है वो ये इसके बेस्ड है. तो बोथ ऑफ आवर मेथड्स आर रॉन्ग. द थिंग इज दैट उन्होंने इस मेथड से सॉल्व किया है, इसलिए उसके ऑप्शंस भी डिफरेंट है. समझे क्या? Yes, sir. सेम प्रोसेस फॉलो करोगे यू विल गेट फाइनल आंसर. 175 एक्चुअली डाउट वाला क्वेश्चन था. इट वाज गुड क्वेश्चन. चलो हो गया. लेट्स मूव ऑन टू हायर लेवल क्वेश्चंस नाउ. कुछ हायर लेवल क्वेश्चंस अभी मिलके सॉल्व करेंगे. मिलके नहीं, आप ही सॉल्व करो, पहले ट्राई करो, देन आई विल हेल्प यू. नहीं मैंने दिया नहीं सुमित्रा. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर क्वेश्चंस. आई एम लुकिंग फॉर गुड क्वेश्चंस. The questions that would actually make you confused. Begin with question number 188. Then go for question number 184. Go for question number 190. Go for question number Sir, 184 में beat frequency ढूंढना है. 184 में beats ढूंढना है. Okay. I'll give you one formula 184 का. Beat frequency can be found out by this formula. More n1 minus n2. मतलब n1 निकालो n2 निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो बस. But solve it. Now this one is a good question. 195. And last one 196.
So first question that we are going to solve is question number 188. In 188, they are saying in the fundamental mode, the time taken by the sound wave to reach up to the close end of the pipe filled with air is 0.01 second. Okay. The fundamental frequency of the vibration of air is what? तो हमें fundamental frequency यानी कि basic frequency find out करनी है. Okay. To actually understand this particular thing, we could use a very simple concept. That is, pipe close at one end जब भी होता है, तो इसका fundamental frequency होता है V/4L. Okay. This is the one formula that we could use, or we could use another formula also, V equals to n lambda. But anywhere they have not mentioned the velocity, so we have to take a pause. हमें ये method से कुछ फायदा नहीं होगा. What we can understand for fundamental mode is that it is simply na, that is either n होता है, either a होता है. So the length between this particular pipe, और इसका अगर length बोलेंगे या फिर distance बोलेंगे, तो वो distance है नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, दैट इज लैम्बडा बाय 4. नेक्स्ट थिंग इज द ये ओके, अपने को क्या निकालना है? अपने को टाइम पीरियड निकालना है कि फ्रीक्वेंसी. ओके, गॉट इट. ठीक है गाइज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड. वी कैन यूज ऑल्सो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, बट अपने को टाइम पीरियड पता नहीं. What we know is this, कि ये जो टाइम है ना वो 0.01 सेकेंड है, उसको ऊपर से नीचे जाने के लिए लग रहा है. तो दैट मीन्स जब डिस्टेंस लैम्बडा बाय 4 है तो टाइम पीरियड 0.01 है. जब डिस्टेंस लैम्बडा बाय 4 है तो जो टाइम लगा वो 0.01 है. कंप्लीट टाइम पीरियड तब मिलता है जब वेव का वेवलेंथ होता है लैम्बडा. तो दैट कुड बी अचीव्ड by multiplying this into 4. So that means lambda will be achieved at the time of 4 into small t. Cross multiply करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है. तो you will get 4 into 0.01, that is 0.04. तो ये आपका हो गया t, n के जगह पुट करो, तो this is 1/0.04. So 1/4 by 100, so that will be 25. 25 is the final answer. क्लियर सिद्धेश? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से भी कर सकते हैं. हाँ, वो भी कर सकते हैं. अगर आपको ये मेथड नहीं समझा तो यू कुड यूज वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. बोथ केस में स्पीड सेम रहेगा, तो v इक्वल्स टू v. पहले केस में डिस्टेंस है लैम्बडा बाय 4 अपॉन टाइम है 0.01. सेकेंड केस में डिस्टेंस लैम्बडा लेना है, टाइम इज अननोन कैपिटल T. क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी, एट द एंड यू विल गेट सेम रिजल्ट. सो वी कैन बेसिकली यूज दिस वन आल्सो. चॉइस इज योर्स. there used to be one student, मेरे बहुत पुराना मतलब लाइक 2 साल पहले की बात है, तो जेई में था वो, एंड ही यूज्ड टू यूज दिस मेथड इन ऑलमोस्ट एवरी सम. लाइक अगर ये इससे इक्वेट है तो ये किससे इक्वेट होगा ऐसे टाइप में, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला. इवन दो उसे आंसर नहीं आता, फिर भी वो उसके दिमाग में पहले यही मेथड आता था, पहले यही ट्राई करूंगा. ठीक है. So this was the question number 180, जो भी था वो हो गया. Let's move on to next question, that is question number 190. What are they saying in question number 190? An open pipe is in resonance in the second harmonic with frequency f1. Now one end of the tube is closed and the frequency is increased to f2 such that the resonance again occur at nth harmonic. Wow, nice. Choose the correct option. So we have to choose एकदम ऐसा proper ऐसा option choose करना है जो इसमें से satisfy हो. And आप सिर्फ n निकाल के guess नहीं कर सकते, so you have to guess the second condition also. First of all, oh yes, it's quite a good question. Yes, we can use this logic. अपने में 2 कंडीशन है. एक कंडीशन क्या बोला है पता है? पहली बात तो कंडीशन अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट ओपन एंड ना, पहले तो नहीं पाइप, हाँ ओपन पाइप लिया है, ये ओपन पाइप लेते हैं पहला वाला, उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको f1 बोला है. ओके, अभी इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो बेसिकली कौन सा होता है? इफ यू रिमेम्बर इट इज v by
2L. ओके, बट उन्होंने सेकेंड हार्मोनिक कंसिडर करने को बोला है. अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो फॉर अ पाइप रेजोनेंस इन द सेकेंड हार्मोनिक विथ फ्रीक्वेंसी F1, तो यहाँ पे F1 का वैल्यू एक्चुअली 2 टाइम्स V/2L होगा. इन रेजोनेंस मतलब क्या, उसके साथ बचता है, तो मतलब F1 इज 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ये ओपन एंड के लिए बोला. अभी क्लोज एंड के लिए उन्होंने क्या बोला है कि जो F2 है वो समवेयर अराउंड n टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज V/4L. तो ये आपको मिल गया. डोंट यू एग्री विथ मी कि आप F1 और F2 को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो कि दोनों का इक्वेशन बन जाए. मुझे पूछोगे तो मैं सिंपली रेशियो लूंगा, बिकॉज दैट वुड मेक दिस पर्टिकुलर सम वेरी इजी. पहले तो ये 2 2 उड़ा देते हैं. सो F1 अपॉन F2 इफ यू यूज, दिस विल बी V/L अपॉन n टाइम्स V/4L. So you can do some cancellation, VL cancel. तो right hand side में 4 ऊपर जाएगा, you get 4/n. Now if you do cross multiplication, तो आपको F2 मिलेगा 4/n times F1. I think this is the condition that we are getting. कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? सर n/4. हाँ, extremely sorry, मेरे को लग ही रहा था. n/4 F1. तो ये कंडीशन हुआ आपका. अभी आपके पास ऑप्शंस देखोगे, अभी ऑप्शंस रेफर करोगे, तो द फर्स्ट ऑप्शन दैट कम्स अक्रॉस योर माइंड इज n को 3 ले लो. तो जब आप n को 3 लेते हो तो आपका F2 का वैल्यू हो जाता है 3/4 F1. बट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज रॉन्ग. लेट मी टेल यू व्हाई. बिकॉज इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग कि द फ्रीक्वेंसीज आर सच दैट F2 इज ग्रेटर देन F1. एंड ये कंडीशन से मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि F2 is greater than 1. So यहाँ पे as you can say as F2 is less than F1, this option is wrong. So the only other possible answer is 5 डालो and you will get what you are looking for. सही क्वेश्चन था ये, एक नंबर. समझा क्वेश्चन सबको ये अभी? समझा सर. What about others? Any doubt? No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 196 के बाद एक नंबर क्वेश्चन था. तो देयर आर सम क्वेश्चन जिनको सॉल्विंग करने में पता नहीं क्यों मजा आ जाता है. ये 195 था कि 196 था? 196. सो वी आर डन विद क्वेश्चंस. नहीं 195 था शायद ये. 90 था. अच्छा 190. सर मेरे को रेजोनेंस का मीनिंग क्या कहा था आपने? रेजोनेंस मींस कैसे होता है कि मैच होना फ्रीक्वेंसीज का. तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो F1 है ना, इट इज इन रेजोनेंस विथ सेकेंड हार्मोनिक. अभी सेकेंड हार्मोनिक का मतलब क्या डियर? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो भी होगा F0 या फिर N0, उसका 2 टाइम्स विल बी सेकेंड हार्मोनिक. एंड इन रेजोनेंस विथ मतलब F1 इक्वल्स टू. अभी समझा? हेलो, समझा कि नहीं? यस सर. हाँ Yes. तो हाँ तो बोल. उधर पे सर हिला के कैसे दिखेगा, कैमरा तो ऑफ है. नेक्स्ट वन 190 हो गया. 195 कर देते फटाफट एंड देन 196 करना है. सॉरी. ओके 195. First harmonic of the pipe is closed at one end and I'm reading another question. Yeah, got it. In organ pipe P1 close at one end, vibrating at its first harmonic, and another pipe P2 open at both ends. चल ठीक है, एक पाइप क्लोज है, एक पाइप ओपन है. ओके, एंड देन व्हाट दे आर सेइंग कि जो क्लोज पाइप है वो फर्स्ट हार्मोनिक में बज रहा है. तो मतलब जो भी उसका NP होगा दैट इज 1 टाइम्स N0. फर्स्ट हार्मोनिक ना, मतलब फंडामेंटल मोड में ही बज रहा है वो. ठीक है, कोई बात नहीं. सेकंड क्या बोल रहे हैं? पाइप P2 at another pipe P2 open at
both ends vibrating in its third harmonic. तो इसका NP है 3 times N0 are in resonance with a given tuning fork. तो ये वाला पाइप भी और ये वाला पाइप भी किसी कॉमन ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस में है. रेजोनेंस मतलब उनका फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है. रेजोनेंस मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वेट हो रहा है. अगर समझो इसका फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच हो रहा है एंड इसका फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच हो रहा है, तो इनडायरेक्टली दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए. इज इट क्लियर? Yes, sir. अगर ये फिर से चाहिए तो मैं फिर से बताऊंगा, आप बोलो जस्ट. आपको फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है? इफ A is in thermal equilibrium with B and B is in thermal equilibrium with C, then A will be in thermal equilibrium with C. वैसा ही है कि अगर आपका क्लोज पाइप इसके साथ इक्विलिब्रियम में, मतलब अगर इसका वैल्यू 20 है तो ट्यूनिंग फॉर्क का भी 20 है. और उन्होंने सेकंड केस में क्या बोला है? ओपन पाइप और इसका वैल्यू भी 20 है. तो डियर इसका और इसका क्या हुआ? 20 हुआ ना. तो व्हाट माय पॉइंट इज, यू कैन डायरेक्टली इक्वेट these two things, that is NP of closed pipe, you could equate it to NP of open pipe. So NP of closed pipe is simply N0 C and NP of open pipe is simply 3 times N0 open pipe. अभी आगे क्या करना है आपको? बेसिक कंडीशन तो पता है. अरे निकालने को क्या बोले? रेशियो ऑफ लेंथ. ठीक है. सो दैट इज पहला पाइप क्लोज है तो LC अपॉन LO पूछ रहे. अभी क्लोज पाइप का रेंज क्या होता है? फंडामेंटल क्या होता है? V अपॉन 4L और इसका हो जाएगा V अपॉन 2L. बस हो गया सॉल्व. आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. अच्छा चाहे तो इसको भी कम कर दो. LO अपॉन LC, ये LO अपॉन LC क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, LC अपॉन LO सॉरी. LC upon LO is equals to 1/6 आ रहा है. हाँ, it's in the option. Done. ये भी समझा? Next. This was question number 195. Let's move on to last question, 196. Okay, 196 guys. A cylindrical tube open at both ends has a fundamental frequency F in air. The tube is dipped in vertically water so that half of it is in water. The fundamental frequency of air column. Wow. ये मतलब हाँ मैंने देखा है, मेरे को पता है ये क्वेश्चन है. इसके पहले भी मैंने सॉल्व किया. पाइप इज ओपन एट बोथ एंड. व्हेनेवर द पाइप इज ओपन एट बोथ एंड तो इसमें अवर ग्लास जैसा फिगर बनेगा फंडामेंटल मोड में, दैट वी आर फैमिलियर विद. लाइक बेसिकली वो ओपन पाइप की तरह बिहेव करता है और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है V/2L. ओके, बट नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू फिल दिस पर्टिकुलर पाइप विद द वाटर, द अदर साइड बिकम्स हाईली डेंस. मतलब यहाँ पे आपने वाटर फिल किया ना, तो ये वाला साइड क्या होगा? हाईली डेंस होगा. और इस पाइप का जो लेंथ होगा या फिर एयर कॉलम होगा वो L/2 हो जाएगा. पहले केस में ओवरऑल लेंथ में वाटर मूव हो रहा है, बट यहाँ पे L/2 हो जाएगा. नॉट ओनली दैट, दिस पाइप नाउ एक्चुअली बिहेव एज अ क्लोज्ड एट वन एंड, क्योंकि वाटर उसको क्लोज कर रहा है. वाटर क्या कर रहा है? क्लोज कर रहा है. तो लेंथ भी हाफ हो गया एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बिहेव एज क्लोज्ड एट वन एंड. तो योर फंडामेंटल मोड now will be equals to V/4L, but instead of L/2. So now what you can do, you can simply write it like this. 2 cancel हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा V/2L. It is quite evident कि जो
ओपन पाइप है उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और जो क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है सेम, दैट इज दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ ही आएगा। पहले का एफ है तो दूसरे का भी एफ आएगा, दैट्स इट। इज इट क्लियर? Yes, sir. सही क्वेश्चन था यार ये, मस्त एकदम। ठीक है, नाउ वी हैव 10 मिनट्स। आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस न्यू चैप्टर, मतलब न्यू कंसेप्ट। नाउ दो ही कंसेप्ट अभी बाकी है, एक है बीट्स वाला। सब लोग सबसे कब से सस्पेंस लेके बैठे, सर बीट्स बता दो सर, क्यों नहीं बता रहे हो बीट्स? बताएंगे बताएंगे, बीट्स लास्ट में ही सिखाते हैं क्योंकि वो लास्ट का ही पार्ट है। बीट्स बाकी है और हार्मोनिक मतलब डॉपलर इफेक्ट में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी आवर लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। हाँ, तो जो सोनोमीटर है उसके थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन देता हूँ आपको, 3-4 आप सॉल्व करो। हाँ बोल डियर। सर सर वो जो क्वेश्चन था उसमें जो वेव होता है वो वाटर से पास नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, वो वाटर से पास होने से बेटर रिफ्लेक्ट करना पसंद करेगा, बिकॉज बेसिकली योर वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल डेफिनेटली पास। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी पास होगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, बट मैक्स टू मैक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड डेफिनेटली। जितना रिफ्लेक्शन तुझे एकदम डेंस मीडियम में मिलता है ना नॉर्मल पाइप में, उससे कम ही मिलेगा, बट डेफिनेटली रिफ्लेक्शन मिलेगा। गेटिंग इट? यस। ओके, नेक्स्ट। हाँ, हायर लेवल के सम करने थे ना। I think you could solve this one. This one is easy. एकदम फालतू क्वेश्चन है, बट ठीक है, दे ही देते हैं। अच्छा, ये वाला देखते हैं किसको आता है। 109। हाँ, 118 बस। 3 questions, your time starts now. Don't forget that these questions are of wave. ये सब होमवर्क में थे। 101 हायर लेवल के, हायर लेवल भी होमवर्क में थे। Yes. 135 तक था 1 to 135 होमवर्क दे दिया था सर। तो फिर क्यों सॉल्व कर रहे हैं, मेरे को बोलो ना। अभी अनिकेत ने बोला है टाइम पास कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चंस करेंगे उसने उतने टाइम में। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन भी दिए क्या? देखो आगे वाले 253 वाले वगैरह। नहीं सर। नो सर। ये नहीं दिए? ठीक है, एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये 2017 सीईटी के है, आई डोंट नो व्हाई आई एम गिविंग दिस टू यू, बट लाइक अच्छे क्वेश्चन है टू बी ऑनेस्ट। 3 क्वेश्चन है, जितने होते हैं करो फटाफट फटाफट। जो भी डाउट है वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर तीनों जल्दी जल्दी हो गए तो अच्छी बात है। आई हैव सेंड दिस इन द ग्रुप।
सर कौन से क्वेश्चन दिए? फोटो भेजे थे ग्रुप पे, लास्ट के 3। वो जो ग्रुप में फोटो भेजा है ना, नहीं भेजा मैंने। 12th IIT में 253, 254, हाँ 255। हाँ। ओके, 253 बीट्स के ऊपर है। Yes, sir. yes. अरे यार छोड़ दो, नेक्स्ट वाला करो। अरे उसमें कुछ टफ नहीं है वैसे। सर बीट्स n2 माइनस n1 से कर सकते हैं ना? हाँ, वही फॉर्मूला है। कैपिटल एन जो होता है ना, नंबर ऑफ बीट्स इज गिवन बाय n1 माइनस n2, मतलब मॉड होता है बेसिकली। तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है, तो उसके अकॉर्डिंगली होता है। ओके, तो आगे वाला जो ग्रेटर वाला फ्रीक्वेंसी होता है वो पहले आना चाहिए। ओके, एन का वैल्यू, कैपिटल एन का वैल्यू आपको 3 दिया है, ये आपका हिंट है। ओके, आर दिस डन?
सर वो बीट्स वाला आप नेक्स्ट क्लास में दिखा सकते हो। हाँ डेफिनेटली। दूसरे दोनों हो गए सर।